हेलो एवरीवन। आज हम आ चुके हैं ये अपने पार्ट 5 में और हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर MHI 101 का, जिसमें हम यूनिट 1 देख रहे थे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़, और जिसके हम 5th पार्ट में आ चुके हैं और शायद ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन आंसर्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दूँ। उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को दिक्कत ना हो, और दोनों को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। दोनों की एक्सप्लेनेशन अगल-बगल में लिखी रहेगी, तो इंग्लिश और हिंदी वालों को दोनों को किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। 1.7 इन्वेंशन ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज। Probably the surest character of humans in their ability to speak. Language is unique to humans. Other animals can emit a limited range of sounds. For example, a dog barks differently to register its happening or anger. Other dogs do understand these sounds. Same is true of all the other animals. However, the range of voices produced by them is very limited. In the case of humans, the range of meaningful sound produced by them verges on infinity. Think of the large dictionaries in all the languages of the world. Each word represents a distinct meaningful sound. That is why language is considered unique to humans. ठीक है, तो हम यहाँ पर आज भाषा के बारे में बात करेंगे कि जो भाषा है, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके बोलने की क्षमता है। भाषा केवल मनुष्य में पाई जाती है। अन्य जानवर भी आवाज़ निकालते हैं, जैसे कुत्ता खुशी या गुस्से में अलग-अलग भौंकता है, लेकिन उनकी आवाज़ों की सीमा बहुत कम होती है। मनुष्य अनगिनत अर्थपूर्ण शब्द बोल सकता है। हर शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। इसी कारण भाषा को मनुष्य की विशेष पहचान माना जाता है। भाषाओं की शुरुआत का सही समय स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य लगभग 1,50,000 साल पहले बोलने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम था, लेकिन स्पष्ट प्रमाण लगभग 40,000 साल पहले यूरोप में मिले, जो कि मॉडर्न मनुष्य जो हैं उनसे मिलते हैं। The beginning of languages are hidden in the midst of past. Human beings were automatically ready to speak more than 150,000 years ago. However, unique evidence for language does not appear for the next 1 lakh years. For example, we know that the modern humans who are found in Europe about 40,000 years ago had a language. This is proved by many related evidences. ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो मनुष्य के मुंह और नाक की बनावट, लंबा गला, जीभ का लचीलापन और ये सब चीज़ें अलग अलग प्रकार से आवाज़ को एक सक्षम रूप देने के लिए सीमित है। केवल आवाज़ निकालना ही भाषा नहीं है। भाषा तब बनती है जब शब्दों का सामाजिक रूप से साझा अर्थ हो। शब्दों और वस्तुओं के बीच कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता, बल्कि समाज उन्हें अर्थ देता है। इसलिए भाषा एक सामाजिक रचना है, क्योंकि जो भी भाषा रहेगी उनको मीनिंग, उनके शब्द लेटर बनाना, ये सब इंसान का काम है। हाँ, पहले से तो प्रकट हो नहीं गई, तो इंसानों में समझ डेवलप हुई, उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने बनाना करना शुरू करा। This is proved by many related evidences. Anatomically, the arrangement of their oral and nasal cavities, their longer pharynx, that is the section of throat just above the vocal cords, and the flexibility of their tongues would have enabled them to shape and project sound over a wide range. यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो आप भी इसको अंडरलाइन कर लेना। However, the evidence for the biological capability has to be combined with evidences that would indicate the ability for socially shared meanings. There is no logical relationship between the sounds of the language and the objects signified by them. These sounds are understood because the speakers and listeners have a socially shared meaning for them. Works of art and understandable to a community because it has a mutually understandable meaning for symbols like painting and icons. In short, art appears when a group has acquired symbolic thinking. That is why art and language reflects each other. Both involve
symbols that are not just the fancies of an individual but creations of a society. केवल आवाज निकालना ही भाषा नहीं है। भाषा तब बनती है जब शब्दों का सामाजिक रूप से साझा अर्थ है। शब्दों और वस्तुओं के बीच कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता, बल्कि समाज उन्हें अर्थ देता है। इसलिए भाषा एक सामाजिक रचना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कला भी केवल मनुष्यों में पाई जाती है। कला मतलब आर्ट। कोई भी जानवर पेंटिंग नहीं बना सकता और ना ही समझ सकता है। अगर एंशिएंट मनुष्यों की बात करें तो एंशिएंट मनुष्यों ने गुफाओं में चित्र बनाए क्योंकि उनको समझ में आ रहा था। फ्रांस के लेस्कॉक्स की गुफाएं, स्पेन के अल्टमेरा की गुफाएं, इन गुफा में चित्र देखकर प्रसिद्ध चित्रकारों पिकासो ने कहा है, हम आधुनिक कलाकारों ने कुछ नया आविष्कार नहीं किया। Art is unique to humans. No other animal is known to paint and draw pictures. No other animal is known to understand or appreciate pictures. Either modern humans all over the world have left evidence of their artwork. So beautiful are the paintings found in the caves of, ये जो मैंने आपको अभी बात समझाई। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको मार्क कर लीजिएगा। स्पेन की बात है ये, फ्रांस में और स्पेन में, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल में लिखने के लिए फ़ायदा होगा। और ये पिकासो को तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस पेंटर हैं। Modern artists have invented nothing. The unequivocal traces for art and languages found so far are not earlier than 50,000 years. The invention of arts and languages meant the acquisition of the capacity to conceptualize things remote in time or space, planning, foresight, social organization, rituals, complex exchange. In short, a whole new world of possibilities emerged in its wake. It was these it was these new forms of cooperation, this ability to plan in advance, that enabled our ancestors to sweep across the globe in a very short time. It was the invention of language that enabled our ancestors to transmit knowledge to children about things they had not seen. It was the birth of idea and imagination. Sorry. आर्ट और लैंग्वेज दोनों एक सिंबल की तरह माने जाते हैं। दोनों को सिंबल के आधार पर यूज़ भी किया जाता है। ये केवल किसी एक व्यक्ति की कल्पना नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की सोच का परिणाम होती है। जब मनुष्य में प्रतीकात्मक सोच विकसित हुई, तभी कला और भाषा का विकास हुआ। अब मोटा तौर पे अगर हम समझें इनका कंक्लूजन, तो कला और भाषा के स्पष्ट प्रमाण लगभग 50,000 वर्ष साल पहले से मिलते हैं। दोनों ही मनुष्य की अनोखी विशेषताएं हैं। ये समाज द्वारा साझा किए गए अर्थों और प्रतीकों पर आधारित है। ये इसका मेन चीज़ है, इमेजिनेशन है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं 1.8 हंटर गैदरर्स, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दैम। अब हमने हंटर गैदरर से क्या सीखा। मोस्टली इनका काम क्या रहता था हंटर गैदरर्स का, वो हंट करते थे और चीज़ों को गैदर करते थे। हमने पहले भी पढ़ा था कि फीमेल्स साथ देती थी। जो मेल जो रहते थे वो स्ट्रॉन्ग रहते थे, तो वो जाते थे बाहर और किल करते थे और हंट करते थे। और दूसरी तरफ जो महिलाएं रहती थी वो गैदरिंग का काम करती थी, लकड़ियाँ बटोरना, कुछ फ्रूट्स वगैरह हुआ तो वो बटोरना, या फिर अन्य और भी चीज़ें, क्योंकि वो उनके लिए ईजी होता था। तो ये काम दो हिस्सों में बट चुके थे। Until 12,000 years ago, virtually all humanity lived as hunters and gatherers. They stand at the opposite pole from the modern urban life. They have lived in small groups without centralized authority or standing armies. They have managed to solve their problems without war and without much violence, with relatively simple technology, wood, bone, stone, fibers. They were able to meet their requirement instead of the 8 hours work schedule of the industrial societies. They managed to collect a nutritive diet with 2 or 3 hours of work. No wonder the American anthropologist Marshall Sahlins calls them the original affluent society. Hunter-gatherers have lived without destroying their environment. We live in societies divided into haves and have-nots. ये important है।
देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो इसमें ये था कि आपका हंटर गैदरर्स जो हैं, अच्छा एक चीज़ और थी इसमें, मुझे एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी थी। इस ऊपर वाले में अगर देखा जाए तो ये इन्वेंशन ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज वाले में, ये लास्ट का थोड़ा सा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन ये कर दूँ, मतलब इसका एक छोटा सा कंक्लूजन टाइप। देखिए ऊपर वाले पार्ट में हमने देखा है कि जो चीज़ें हैं ना, तो उसमें 4-5 चीज़ें उभर के आ रही हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो है मतलब क्या चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस की बात हो रही है ना, कि क्या इन्वेंशन हुए हैं। तो इन्वेंशन मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखोगे ना, तो इसमें ये इन्वेंशन हुए हैं कि प्लानिंग, फॉरसाइट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिचुअल्स और कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज। मतलब मनुष्य पहले से सोचकर काम करने लगा, पहले तो सोचता नहीं था और यहाँ पर सोच के वो काम करने लगा है यहाँ पर, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेजेस में। तभी तो वो आर्ट का इस्तेमाल कर रहा हो, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरीके से फॉरसाइट, मतलब भविष्य के बारे में सोचने और तैयारी करने की क्षमता विकसित हो गई उसमें, ठीक है। पहले मनुष्य इतना नहीं सोचता था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोग समूह बनाकर संगठित तरीके से रहने लगे। किनशिप देख लिया आपने, मतलब शादियाँ करने लगे, रहने लगे और रिश्तेदारी बनाने लगे। ये इस टाइम पे मतलब ये होमोसेपियन में सोच विकसित हुई है, मतलब ऐसी। पहले तो जानवर ऐसे कर नहीं रहे थे, पहले तो लोग कर नहीं रहे थे, पहले तो हमें रिश्तेदारों के परिणाम प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर दूसरा है रिचुअल्स, धार्मिक और सामाजिक रस्में शुरू हुई। ये तो धीरे धीरे होमोसेपियंस ने चालू करा, नहीं तो उसके पहले क्या होता था, लोग इन्वायरमेंट को ही पूछते थे, और वो भी तब पूछते थे जब उनमें धीरे धीरे सोच डेवलप हुई है। फिर उसके बाद आता है अपना कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज, जिसमें वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान, मतलब लोग आपस में अपनी चीज़ों को डिस्कस करने लगे। तो इसमें इन नई क्षमताओं से कोऑपरेशन बढ़ा, मनुष्य पहले से बेहतर तरीके से मिलकर काम करने लगा। इसी कारण हमारे पूर्वज पूरी दुनिया में फैल सकें। भाषा की वजह से वे अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखा सकें जो उन्होंने खुद देखी भी नहीं थी। और कला और भाषा ने विचार और कल्पना, मतलब आइडिया और इमेजिनेशन को जन्म दिया। यही मानव सभ्यता के विकास की सबसे बड़ी नींव बनी। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, हंटर गैदरर्स को। तो ये जो लेटर है, ये बीच में जो लेटर आ रहा है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम यहाँ तक इसके पॉइंट देख लेंगे क्या है, फिर मैं लेटर भी आपको डिटेल में बताऊंगा क्या है उस लेटर में। ठीक है, तो हंटर गैदरर्स वे छोटे छोटे समूह में रहते थे। सबसे पहले तो हंटर गैदरर्स, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं था, ना कोई गवर्नमेंट थी, ना कोई स्थायी सेना थी। ठीक है, आपसी सहयोग से समस्याएं सुलझाते थे। युद्ध और हिंसा कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस तरीके से अभी होती है, और पहले बीच में भी हमने एंशिएंट में और मिडाइवल में देखा, मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न में देखा है। सरल तकनीक, लकड़ी, हड्डी, पत्थर, रेशे का उपयोग करते थे। बहुत अधिक काम नहीं करना पड़ता था, नॉर्मल काम करना पड़ता था। 8 घंटे की तुलना अब आज के लोगों को नॉर्मल 8 घंटे करना पड़ता है, और अब तो 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो 2 से 3 घंटे काम करने के बाद अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे वो, और वह पौष्टिक भोजन करते थे, है ना? अब हम तो तेल मसाले वाला खाते हैं, पर वो लोग तेल मसाले वाला नहीं खाते थे इतना, वो पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स लेते थे, क्योंकि नेचर में ही रहते थे। अमेरिकी अब ये मार्शल जो सैलेंस हैं, ये अपना जिनको हम कह रहे हैं इसमें, ये अपने हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये मार्शल सैलेंस। तो इनका कहना है कि इन्होंने क्या है, ये ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी कहा है इनको, ये कि कम संसाधनों के बावजूद वे संतुष्ट और संतुलित जीवन जीते थे। आज की सोसाइटी में क्या है, फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, वो उन लोग को कुछ ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी, जो मिल गया खा लिया, रह लिया, और ऐसा उनका जीवन चलता भी रहता था, उनके जीवन में इतना स्ट्रेस भी नहीं रहता था। पर आज के जीवन में तो स्ट्रेस बहुत है। आज का समाज अमीर गरीब में बटा है। कृषि और औद्योगिक सभ्यताओं के हजारों वर्ष बाद भी पर्यावरण संकट में पड़ा है। शिकारी और ये जो हंटर गैदर्स हैं, ये बिना पर्यावरण को नष्ट किए जीते थे। मतलब जो पहले हंटर गैदर्स है, वो पर्यावरण को उतना नष्ट नहीं करते थे, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी। बट अब धीरे धीरे पर्यावरण नष्ट होते जा रहे हैं, घर मकान बन रहे हैं, और इस तरीके से हम चीज़ों को आधुनिकता में इतने बढ़ चुके हैं, इतनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कि चीज़ों को हम बर्बादी करने पे लगे हुए हैं, पूरा रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब हम इनसे क्या सीख सकते हैं? प्रकृति के साथ संतुलित जीवन, मतलब हमारे उनका ये रहता था कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते थे, मतलब उसको भी हार्म ना हो और वो जीवन सादा जीवन उच्च विचार रहें।
कम में संतोष कम मिलता था पर उसमें भी उनको सेटिस्फेक्शन रहता था। समानता और सहयोग, सरल जीवन शैली और सामाजिक जीवन, राजनीति, लैंगिक संबंध, भोजन और पोषण के बारे में नए विचार। तो ये हम इससे सीखते हैं, ये चीज़ है। और यही पे ये है, ओवर द लास्ट 3 million years our ancestors learned many things and there was also a visible change in their appearance. If our ancestors were to be brought to the modern world, he would recognize a deer or monkey, however, not for a moment would he suspect us to be his descendants. Biological changes, changes in stone tool technology, acquisition of language, and invention of kinship moved hand in hand with the peopling of the earth long before Europeans discovered America and Australia. Our hunter gatherers ancestors had found roots to those places. About 30,000 years ago, humans had the technology to enter and live in the Arctic. No habitat on Earth was inaccessible. They had the tools to hunt animals to extinction and to transform whole biomes with fire. They were beginning to transform nature. Our discussion indicates that characteristics we associate with human emerged over a long period of history, while tool making emerged about 2 million years ago. Language, art exchange, and kinship seem to have emerged in the last 200,000 years only. The last characteristics we associate with humans, that is food production, is still in future. Let us see how it came about. तो इसमें हम देखें तो हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सीखा और उनके रूप रंग अपीयरेंस में भी बदलाव आया। अगर हमारे पूर्वज आज की दुनिया में आ जाएं तो वे हमें पहचान सकते थे, लेकिन आधुनिक जीवन देखकर हैरान होते। शारीरिक बदलाव, पत्थर के औजारों का विकास, भाषा और रिश्तेदार किनशिप की शुरुआत धीरे धीरे हुई। यूरोपियों के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से बहुत पहले ही शिकारी मतलब हंटर गैदर्स वहां पहुंच चुके थे। लगभग 30,000 साल पहले मनुष्य आर्कटिक बहुत ठंडे क्षेत्र तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर कोई भी स्थान उनके लिए असंभव नहीं रहा। मनुष्य के पास शिकार करने के औजार थे, वह आग का उपयोग करते थे, वह जानवरों को खत्म करने और प्रकृति को बदलने की क्षमता रखने लगे। अगर हम देखें तो इसके जो मानव विशेषताओं का विकास है वो कुछ इस तरीके से होने लगा कि औजार बनने लगे लगभग 20 लाख वर्ष पहले। भाषा, कला और देखा जाए तो बाटर सिस्टम एक तरीके से और किनशिप लगभग 2 लाख वर्ष पहले से देखने को मिली है। और ये जो एग्रीकल्चर का चलन हो गया ये भविष्य में आया, मतलब यानी सबसे बाद में विकसित हुआ है ये एग्रीकल्चर का। तो पहले लोग ऐसे ही खा लेते थे, कच्ची चीज़ें और कच्चा मांस इस तरीके से खाते थे। अगर हम मेन चीज़ देखें इसकी तो मानव विकास एक लंबी प्रक्रिया थी। पहले औजार आए, फिर भाषा और कला और सबसे बाद में खेती। इन सब ने मिलकर मानव समाज को आधुनिक रूप दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये सब डिस्कस कर लिया। अब हम लेटर पढ़ेंगे, अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो इस लेटर में क्या क्या रहा है? ये लेटर जो है वो लगभग 150 साल पहले एक रेड इंडियन चीफ ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लिखा था। जब प्रेसिडेंट उनकी ज़मीन खरीदना चाहते थे। इस लेटर में हंटर गैदरर्स का नेचर के प्रति नज़रिया दिखाया गया है। तो पहली चीज़ इसमें क्या है, ज़मीन बेचने का आइडिया थोड़ा अजीब है। चीफ कहते हैं कि आप आसमान या ज़मीन की गर्मी को कैसे खरीद या बेच सकते हो। हवा की ताजगी और पानी की चमक किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती। उनके लिए नेचर कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो खरीदी या बेची जा सके। धरती पवित्र है, उनके लिए धरती का हर हिस्सा पवित्र है, सैक्रेड है। हर पेड़, हर किनारा, हर जंगल, हर कीड़ा उनके लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ों में बहने वाला रस भी उनके पुरखों की याद दिलाता है, मतलब उनका नेचर से इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। धरती माँ है, वो कहते हैं कि धरती उनकी माँ है, फूल उनकी बहनें हैं और जानवर जैसे डियर, हॉर्स, ईगल उनके भाई बहन हैं। मतलब इंसान और प्रकृति अलग नहीं बल्कि एक ही परिवार का हिस्सा हैं। व्हाइट मैन पर आलोचना। चीफ कहते हैं व्हाइट मैन यूरोपियन लोग धरती को सिर्फ एक चीज समझते हैं जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। वो प्रकृति का शोषण एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उनकी लालच धरती को बर्बाद करके डेजर्ट बना देगी। इसका मुख्य जो मैसेज था वो ये था कि हंटर गैदरर्स नेचर को माँ और पवित्र मानते थे।
उनके लिए एनवायरनमेंट से प्यार और रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट था, जबकि मॉडर्न सोसाइटी नेचर को सिर्फ रिसोर्स समझकर यूज़ करते थे। तो ये इस पूरे लेटर में लिया हुआ है, इसको मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या मुख्य बदलाव हुए हैं, क्या ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 1.9 में आ चुके हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस सेपियंस इज वन ऑफ प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स। They learned to make tools combining wood and stones. They learned fishing, boating, and swimming. It was around this time that the Holocene era began. Weather became warmer, causing different kinds of changes across the globe. For example, in West Asia, dry desert replaced forest. In Europe, on the other hand, snow melted away and forest grew. Faced with these climatic changes, our foraging ancestors devised new forms of adaptations. These new forms of adaptations moved along four different trajectories. Most of the communities continued their hunting gathering life. They simply added new marine species and various seeds into their food kitty. In many areas, forests and rivers could supply them food in plenty. Also, many of these groups preferred the freedom and leisure of the hunting gathering way of life. That is why, even in AD 1500, foragers occupied fully one third of the globe. This included Australia, most of North America, as well as large tracts of South America, Africa, and Northeast Asia. Even today, hunter-gatherers live live on in 40 countries in the presence of hundreds of thousands of descendants, a generation or two removed from a foraging way of life. तो इसमें क्या हम देखते हैं, नया साल मतलब नए नए स्किल्स। और होलोसीन एरा क्या कहता है, ह्यूमंस ने वुड और स्टोन को कंबाइन करके बेटर टूल्स बनाए, फिशिंग, बोटिंग और स्विमिंग भी सीखा। इसी टाइम होलोसीन एरा शुरू हुआ। क्लाइमेट वार्म हो गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े बदलाव आए। वेस्ट एशिया में फॉरेस्ट की जगह डेजर्ट आ गए, यूरोप में बर्फ पिघली और फॉरेस्ट बढ़े। इसमें एडेप्टेशन के 4 रास्ते बताए हैं। पहला तो है हंटिंग गैदरिंग, कंटिन्यू रहा। ज़्यादा कम्युनिटीज़ ने अपना पुराना हंटर गैदरर लाइफ ही कंटिन्यू किया, बस अपने फूड में नए सीड्स और मरीन समुद्री स्पीशीज ऐड कर लिए। इस लाइफ में फ्रीडम और लेजर ज़्यादा था। 1500 एडी तक भी दुनिया का 1/3 हिस्सा फॉरेजर्स के पास था, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और अन्य। आज भी कुछ कंट्रीज़ में हंटर गैदरर्स मिलते हैं। ज्योग्राफी में आज भी पढ़ते हैं कि हंटिंग गैदरिंग होती है, हंटर गैदरर्स आते हैं। अब दूसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, कल्टीवेशन प्लस नोमैडिक लाइफ। कुछ जगहों जैसे चाइना, मैक्सिको पर लोग प्लांट्स उगाने लगे, लेकिन वो विलेजेस में परमानेंटली सेटल नहीं हुए, वो नोमैडिक ही रहे और ये मिक्स्ड सिस्टम 2000 साल तक चला। इसलिए इसे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेज नहीं कहा जा सकता। और पेस्टोरल, अब हम देखते हैं तीसरा, पेस्टोरल नोमैडिज्म। लोगों ने एनिमल्स पालना शुरू किया, जैसे शीप, गोट एक्सेट्रा। वो अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। एग्रीकल्चर जो चूँकि चौथा है, इसमें है कुछ लोग परमानेंटली सेटल हो गए, फार्मिंग शुरू हुई। इसी से आगे चलकर विलेजेस और सिविलाइजेशन डेवलप हुई। मुख्य आइडिया की बात करें तो द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है क्लाइमेट चेंज के बाद ह्यूमंस ने अपने जाने के तरीके बदले। सब ने एक ही रास्ते नहीं अपनाए। कुछ हंटर गैदरर्स रहे, कुछ ने फार्मिंग और पेस्टोरल लाइफ स्टार्ट की। इसी प्रोसेस ने आगे चलकर ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन को शेप दिया। तो ये पूरा सार इसका। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हंटर गैदरर्स बिगन कल्टिवेटिंग प्लांट्स बट कंटिन्यू टू लिव लाइक नोमैडिक फॉरेजर्स। वही सब है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एविडेंसेस have been found in China and Mexico that plants were cultivated by nomadic foragers. They did not settle down in villages. They continued to thrive in this mixed form of food acquisition for more than 2000 years, so it cannot be regarded as a transition stage. There were two other forms of adaptation to the changes in environment had the potential for the development of human culture. These were pastoral नोमेडिज्म एंड एग्रीकल्चर। पहले मैं आपको एक लाइन पढ़ के समझाता था, अब मैं पूरा एक पैराग्राफ पढ़ के फिर इकट्ठा समझाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो।
ऐसा ना हो कि कुछ मिसकंसेप्शन हो गया, पहले मैंने इंग्लिश पढ़ा फिर हिंदी पढ़ा तो उसमें डिस्टर्बेंस दिक्कत भी होती थी, इसलिए मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के आप पूरा एक बार में उसको निष्कर्ष समझा देता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म। 1.10 पे आ गए हम अपने चैप्टर के। इसके बाद एग्रीकल्चर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर, थोड़ा सा पार्ट और है कोशिश करते हैं हम आज ही कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया था अपना पेस्टोरल नोमैडिज्म, ये है, ठीक है। सम हंटिंग गैदरिंग, चलिए मैं रीड कर देता हूँ। सम हंटिंग गैदरिंग communities took up farming and herding of animals. Evidences from West Asia suggest agriculture and animal domestication emerged at nearly the same period. Some communities preferred herdings of animals over agriculture. The Central Asian steppes, consisting of countries like Mongolia, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, etc., was an area where herding of animals was the dominant form of living until about 300 years ago. These are indications for the domestication of dogs, pigs, and horses. From the Mesolithic period, it was the domestication of cattle, sheep, and goat that imposed a new pattern of livelihood on the humans. Pastoralism generated a different lifestyle. The domestication of the domestication of animals represented a radically new way of life. In the hunting gathering mode of life, animals were killed and consumed immediately. Now, animals were reared to act as walking ladders that could be used in times of scarcity. Unlike the agriculturists who generally settled down in villages, pastoralists moved from one place to another in search of pastures. Historically, the nomadic people lived in the grassy plains of Asia, Africa, and the Americas, where the grasses provided the sustenance for their sustenance for their herds. Pastoral nomadism varied according to the type of domesticated animals chosen as the primary source of livelihood. तो इसमें देखा गया है कि पेस्टोरल नोडिज्म आखिर है क्या। जब लोग फार्मिंग की जगह एनिमल पालने को मेन लाइवलीहुड बना लेते हैं, यह लोग परमानेंटली एक जगह सेटल नहीं होते। अपने एनिमल के साथ पास्चर्स मतलब चरागाह मतलब जो चराते हैं, चराने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई अब इसकी? वेस्ट एशिया में एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन लगभग एक ही टाइम शुरू हुई। सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान ये मेन हर्डिंग में लाइफ स्टाइल था। मेसोलिथिक पीरियड से ही डॉग्स, पिग्स और हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है। बाद में कैटल, शीप और गोट्स का डोमेस्टिकेशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हंटिंग से अलग कैसे? हंटिंग गैदरिंग में एनिमल को तुरंत मारकर खा लिया जाता है। पेस्टोरलिज्म में एनिमल को वॉकिंग लार्डर की तरह पाला जाता है, यानी ज़रूरत के टाइम यूज़ किया जा सके। इससे एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। अलग अलग जगहों पर पेस्टोरलिज्म कैसा है, जैसे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के ग्रासलैंड्स में नोमैड्स रहते थे। वेस्ट एंड साउथ एशिया और अफ्रीका में गोट, शीप और कैटल हर्डिंग कॉमन था। अब हिटिटाइज, हाइस्कोज, अर्ली ग्रीक्स और आर्यंस हॉर्स नोमैड्स थे। अरेबिया और सूडान में कैमल नोमैड्स थे। सहारा डेजर्ट के ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते थे। साइबेरिया और नॉर्थर्न यूरोप में रिएंडेयर्स हर्डिंग होती थी। एंडिस अमेरिका में इल्मास और अल्पेकास पेल जाते थे। तो इस तरीके से अब देखें हम कैटल हडर्स, हॉर्स नोमैड्स एंड अदर्स। गोट, शीप एंड कैटल हर्डिंग वाज कॉमन इन वेस्ट एंड साउथ एशिया एंड throughout the plains of southern and eastern Africa. Cattle became the basis of wealth for many of these warrior-dominated societies. Hittites, Hyksos, early Greeks, and Aryans were horse nomads. The earliest horse nomads did not ride their animals but fought from chariots. ये वही है, chariots रथ होता है। काम का है आपके, इसको मार्क कर लेते हैं। Reanders herding as a form of pastoral nomadism may have developed even before herds were kept on the Eurasian steppes. They were mostly confined to
northern Europe and Siberia. These communities were at a distance from the main centers of contemporary civilization in Arabia and the areas around Sudan in Africa. Camel nomadism became common in the early centuries of the Christian era. Able to subsist on limited water and fodder, camel nomads controlled trade routes that crossed the Great Saharan and Arabian deserts in the Indian highlands in America. Llamas and alpacas were domesticated. देखिए प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बट आप इसको गूगल कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे मुझे नहीं पता, कई बार तो मैं गलत हो सकता हूँ प्रोनाउंसिएशन के मामले में, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको सही मिलेगा। Alpacas were domesticated and led to a limited pastoralism. Maintenance of herds was critical to the survival of nomadic groups. These animals supplied meat and milk to the nomads. Camels, horses, and oxen also helped transport goods from one pasture land to another and to markets. तो नोमैड्स के लिए ज़्यादा वेल्थ रखना मुश्किल होता है क्योंकि सब कुछ कैरी करना पड़ता है। उन्हें रोज़ टेंट लगाना और पैक करना पड़ता है। अगर एनिमल ज़्यादा हो जाएं तो उन्हें ज़्यादा फास्ट मूव करना पड़ता है क्योंकि चारा जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कभी-कभी वो कुछ एनिमल्स एक्सचेंज करके दूसरे गुड्स लेते हैं। अगर नोमैड्स बहुत अमीर हो जाएं तो उन्हें सेटल होना पड़ता है। तो मेन इसका वो क्या है, तो पेस्टोरलिज्म नोमैडिज्म एक ऐसी लाइफ स्टाइल था जहाँ लोग एनिमल पर डिपेंड थे और मोबिलिटी चलना फिरना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। यह फार्मिंग से अलग था और ह्यूमन सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम इसमें और आगे देखें तो ये लास्ट का पैरा ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब क्या है इंस्टेबिलिटी, अगर इंस्टेबिलिटी की बात करें तो शीप और गोट को इन्फेक्शन जल्दी लग जाते थे और वो बड़ी संख्या में मर सकते थे। अगर हर्ड्स ख़त्म हो जाएं तो नोमैड्स के पास लाइवलीहुड नहीं बचता। ऐसी सिचुएशन में वो सेटल्ड खेती करने वाले लोगों के साथ काम करने लगते थे। कभी-कभी हर्ड ख़त्म होने पर वो पड़ोसी कम्युनिटीज़ पर हमला भी कर देते थे। इसलिए पेस्टोरल नोमैडिज्म लाइफ नेचुरली अनस्टेबल थी। वॉरियर नेचर देखा जाए तो पेस्टोरल सोसाइटीज़ में ज़्यादा पावर वॉरलाइक योद्धा मेल्स के पास होती थी। लॉयल्टी और करेज उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ थी। मोबिलिटी तेज़ी से मूव करना को करना की वजह से वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते थे, कभी-कभी सेटल्ड आर्मी से भी ज़्यादा पावरफुल। नोमैड्स का हिस्टोरिकल इम्पैक्ट देखा जाए तो स्कॉलर्स कहते हैं कि कई अर्ली स्टेट्स तब बने जब नोमैडिक ग्रुप्स ने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को कॉन्क्योर किया। अर्ली मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी नोमैड्स का जिक्र मिलता है। अर्ली ग्रीक्स और आर्यन नोमैड्स बैकग्राउंड से थे। हुन सियुंगनू वेस्ट में ह्यून्स ने रोमन एम्पायर और एनिमल किंगडम्स को अटैक किया। चंगेज़ खान ने 13th सेंचुरी में सबसे बड़ा एम्पायर बनाया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सेटल्ड सोसाइटीज़ का एडवांटेज, एग्रीकल्चर सोसाइटी ज़्यादा पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकती थी। वहाँ ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, अलग अलग काम डेवलप हुआ। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, राज्य कानून व्यवस्था बने। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चरिस्ट को नोमैड्स पर एडवांटेज मिला। ठीक है, तो अगर फाइनल आइडिया देखा जाए तो इसमें क्या था, पेस्टोरल नोमैड्स का लाइफ अनस्टेबल था लेकिन उनका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। उन्होंने कई सिविलाइजेशन को शेप किया, किंगडम्स बनाया और डिस्ट्रॉय भी किया। फिर भी लॉन्ग रन में सेटल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटी ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल साबित हुई। अब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ये मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। इन प्लेसेस लाइक वेस्ट एशिया, इजिप्ट, इंडिया एंड चाइना क्लाइमेटिक चेंजेस लेड टू द इमरजेंस ऑफ फार्मिंग as the dominant form of living. These people also domesticated animals. However, agriculture was the dominant survival strategy for them when food production and animal domestication combined as a mode of life. It was a revolution. The transition from foraging to farming is one of the turning points in our history. The seasonally mobile
life of hunter-gatherers who obtained their food from wild plants and animals was replaced by the settled life of farmers who cultivated crops and raised domesticated livestock. This shift to sedentary life led to the growth of population and village settlement, the development of crafts such as pottery and metallurgy, and eventually to states and cities. फूड प्रोडक्शन इसको भी मैं रीड कर देता हूँ, इकट्ठे ही समझा दूंगा आपको. फूड प्रोडक्शन एंड एनिमल domestication represented a change outlook for food quest. It represented a planning not for a day but for a season. For the long term, this new agricultural economy expanded at the expense of the old foraging way of life. Slowly and steadily, agriculture became the dominant mode of life. Even today, it remains the dominant occupation of the majority of humans. Last 200 years of industrial revolution have reshaped the contours of the world. However, even now, in a country like India, almost 75% of people are agriculturists. The soil they work on is an artificial soil fashioned by thousands of years of labor. अगर इसमें देखा जाए तो एग्रीकल्चर की शुरुआत वेस्ट एशिया, इजिप्ट, इंडिया और चाइना में क्लाइमेट चेंज की वजह से फार्मिंग शुरू हुई. उसके बाद लोगों ने क्रॉप्स उगाना और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे एग्रीकल्चर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिविंग बन गया. दूसरी बात देखी जाए तो फॉरेजिंग से फार्मिंग तक का ट्रांजिशन. पहले हंटर गैदरर्स जंगल से फूड कलेक्ट करते थे. फार्मिंग ने उनकी जगह ले ली. अब लोग खुद फूड प्रोड्यूस करने लगे. इस ट्रांजिशन को एक रिवॉल्यूशन माना जाता है. सीजनल मूवमेंट की जगह सेटल्ड एक जगह में रहना लाइफ शुरू हो चुकी थी ऐसी. सेडेंट्री लाइफ का इफेक्ट कैसा रहा? लोग विलेजेस में परमानेंटली सेटल हो गए. पॉपुलेशन बढ़ने लगी. क्राफ्ट्स डेवलप हुई जैसे पोट्री और मेटलर्जी. आगे चलकर सिटीज और स्टेट्स बने. अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर का मतलब था फ्यूचर के लिए प्लानिंग. अब लोग एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे सीजन के लिए काम करते थे. यह एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक सिस्टम था. एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट देखा जाए तो धीरे धीरे फार्मिंग दुनिया का मेन ऑक्यूपेशन बन गया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रहा. आज भी इंडिया जैसे देश में लगभग 75% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं. सॉइल को हज़ारों सालों की मेहनत से तैयार किया गया है. अगर इसका मेन आइडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर ने ह्यूमन लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया. नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ, विलेजेस से सिटीज़ और सिंपल सोसाइटी से ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स तक का सफ़र फार्मिंग की वजह से पॉसिबल हुआ. तो ये हमने अपना ये डिस्कस कर लिया है. अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह हम देखेंगे. 1.11 पे आ गए हैं. एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के कॉन्सिक्वेंसेस. अगर इसमें देखा जाए तो एग्रीकल्चर चलिए, ये हमारा इसका एग्रीकल्चर तक हो गया था हमारा. ये बीच में थोड़ा सा पॉज ले लिया. मैं ये बोल रहा था कि हाँ, एग्रीकल्चर तक ये हमारा हो चुका है. ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन उसमें लगा चुकी है. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करेंगे. इसको रीड करने में टाइम लग रहा है और टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सहूलियत रहे आपको और ये हमारा चैप्टर आज जल्दी ख़त्म हो जाए. नहीं तो मुझे अलग से इसके लिए फिर से एक वीडियो बनाना पड़ेगा. खैर, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. तो हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर की. तो इसमें ये मेन पॉइंट है इसके बर्थ ऑफ विलेज कल्चर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एक्सपांशन ऑफ सेटलमेंट्स. तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो जो हंटर गैदर सीज़न के हिसाब से मूव करते थे एनिमल और फ्रूट्स के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन एग्रीकल्चर में फार्मर को एक जगह रुकना पड़ता है. बीज बोना पड़ता है, पानी दिया जाता है, प्लांट्स को बचाए और 4-6 महीने बाद हार्वेस्ट किया. इसलिए फार्मिंग ने सेटल्ड लाइफ को इनकरेज किया. इसी से विलेजेस और टाउन्स का जन्म हुआ. डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ ह्यूमंस भी एक जगह सेटल हो गए. रोड्स, हाउसेस, हट्स, विलेजेस, ये सब एग्रीकल्चरल एंसेस्टर्स की देन है.
आज जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलते हैं वो इन्हीं प्राचीन विलेजेस के अवशेष हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो सेटल्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा फास्ट बढ़ी। क्रॉप्स और मिल्क जैसे स्टेबल फूड सप्लाई मिलने से बर्थ रेट बढ़ा। फर्टाइल क्रिसेंट में सेटलमेंट्स का साइज 10 गुना बढ़ गया। हंटर गैदरर्स छोटे ग्रुप्स 20 से 30 लोग में मेन रखते थे। फार्मर्स हंड्रेड्स लोगों को सपोर्ट कर सकते थे। फूड स्टोरेज एंड सरप्लस फार्मर्स फूड को स्टोर कर सकते थे। इसे फैमाइन का रिस्क कम हुआ। फैमाइन वो होता है भुखमरी, कभी फसल खराब हो जाना तो उससे हो जाना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सरप्लस फूड ने बड़े विलेजेस को पॉसिबल बनाया। एक्सपांशन ऑफ लैंड क्रॉप्स उन जगहों पर उगाए गए जहां नेचुरली नहीं उगते थे। लोगों ने नए एरियाज कॉलोनाइज किए। एग्रीकल्चर ने लैंड की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। एक हंटर गैदर्स को साल भर के लिए लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर लैंड चाहिए होता था, लेकिन छोटा सा लैंड पीस भी कई फार्मर्स को सपोर्ट कर सकता था। अगर नेगेटिव साइड देखें तो स्लेवरी और इनइक्वलिटी भी देखी गई। एग्रीकल्चर के साथ स्लेवरी भी आई। स्लेवरी जिसमें गुलाम बना के रखा जाता था, और इनइक्वलिटी भी देखी गई। चीफ्स और पावरफुल लोग दूसरों को जबरदस्ती काम करवाते थे। लोगों को अपने प्रोड्यूस का हिस्सा देना पड़ता था। अगर मेन आइडिया की बात करी जाए तो विलेज का जन्म दिया एग्रीकल्चर ने। विलेजेस को जन्म दिया, पॉपुलेशन बढ़ाई, सेटलमेंट्स एक्सपांड किया, सरप्लस और स्टोरेज पॉसिबल किया, लेकिन साथ ही इनइक्वलिटी और एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ाया। अब हम इस बॉक्स की बात करेंगे तो इस बॉक्स में क्या एक्सप्लेन करा गया है। मॉडर्न टाइम्स में भी डोमेस्टिकेशन। हमारे गार्डन्स में जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनमें से कई हिमालय से लाए गए थे और 20 सेंचुरी में डोमेस्टिकेट किए गए। इसी तरह कई मेडिकल प्लांट्स भी रिसेंट सेंचुरीज में डिस्कवर और डोमेस्टिकेट किए गए। साइंटिफिक डिस्कवरीज रोज कोई ना कोई बॉटनिस्ट, पौधों का साइंटिस्ट किसी प्लांट की नई यूजफुल प्रॉपर्टी डिस्कवर करता है। फिर उन प्लांट्स को आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है ताकि उनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। नेगेटिव साइड फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन है, लेकिन फॉरेस्ट की लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की वजह से कई प्लांट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डिस्कवर होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। मतलब हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वैल्यूएबल प्लांट्स खो रहे हैं। मेन आइडिया की बात करें तो प्लांट डोमेस्टिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। साइंस नए प्लांट्स और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर करता रहता है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से कई इंपॉर्टेंट प्लांट्स हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाते हैं। अब हमारा ये पेज बचा है, इसके बाद हमारी समरी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें है एमरजेंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, न्यू एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस, न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्डर्स एंड डिस्प्यूट। तो हम इसको देखते हैं। एग्रीकल्चर के आने से लॉन्ग टर्म कॉपरेशन ज़रूरी हो गया। हंटिंग गैदरिंग में कॉपरेशन सिर्फ हंट तक होता था। हंट खत्म ग्रुप टूट जाता था। लेकिन फार्मिंग में बीज बोने से लेकर हार्वेस्ट तक 4-5 महीने तक मिलकर काम करना पड़ता था। फार्मर्स को पूरे साल एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता था। इसी वजह से बड़े किनशिप नेटवर्क्स रिश्तेदारी का जाल बनाया गया। इन्हीं से ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। मतलब एग्रीकल्चर ने स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल सोसाइटीज़ को जन्म दिया। न्यू एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस देखी जाए तो रेगुलर फार्मर से रेगुलर फूड मिला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लेकिन सेटल्ड लाइफ से नए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आए। वाटर स्टोरेज, इरिगेशन और स्वैम्प एरियाज में रहने से मॉस्किटोज बढ़े, जो मलेरिया जैसे डिजीज़ बीमारियों को फैलाते थे। विलेजेस के आसपास कचरा जमा होने लगा, जिससे पेस्ट जैसे चूहे बढ़े। मिडिवल पीरियड में ब्यूबोनिक प्लेग रैट्स के थ्रू फैला, मतलब महामारी। इसलिए एग्रीकल्चर के साथ डिजीज़ भी बढ़े हैं। अगर न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्डर्स एंड डिस्प्यूट की बात करें तो उसमें परमानेंट हाउसेज और फील्ड्स में लोगों ने ज़्यादा मेहनत इन्वेस्ट की, इसलिए फार्मर्स अपनी ज़मीन और घर को स्ट्रांगली डिफेंड करते थे। हंटिंग ग्रुप्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता था तो हारने वाले ग्रुप सिंपली जगह छोड़ देते थे, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट अपनी जगह नहीं छोड़ते थे। वो वहीं रहते थे, चाहे उन्हें टैक्स देना पड़े या सबऑर्डिनेट बनना पड़े। इसे वॉर का नेचर
चेंज हो गया। एग्रीकल्चर ने इनइक्वलिटी और पावर बेस्ड सोसाइटीज़ के रास्ते खोले। अगर पूरा देखा जाए तो ओवरऑल ट्राइबल एग्रीकल्चर ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जन्म दिया, डिजीज़ बढ़ाई, वॉर और इनइक्वलिटी को शेप दिया। ये सब फार्मिंग के मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब अगर हम समरी की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री का टाइम स्पेन देखा जाए तो ह्यूमंस 2.5 मिलियन ईयर से ज़मीन पर रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिर्फ लिमिटेड एविडेंस छोड़े हैं। इसलिए हमें अभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि स्पीच, आर्ट, किनशिप और एक्सचेंज कब शुरू हुआ। न्यू डिस्कवरीज की बात करी जाए तो नए आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशंस पुराने आइडियाज़ को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुर्की के कैटलॉग साइट ने पता चलता है कि लोग हज़ारों की संख्या में सेटल्ड थे, शायद फार्मिंग के अलावा कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से। कोई फिक्स्ड पाथ ऑफ एवोल्यूशन नहीं दिखता। हर सोसाइटी एक ही टेक्नोलॉजिकल पाथ फॉलो नहीं करती। एवोल्यूशन या डेवलपमेंट का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। कुछ कम्युनिटीज हंटर गैदर्स रहकर भी खुश थीं। टेक्नोलॉजी और पावर की बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी में बदलाव से कुछ कम्युनिटीज़ को एडवांटेज मिला। उन्होंने नेचर से कंफर्टेबल लाइफ हासिल की, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी ने दूसरी कम्युनिटीज़ को कंट्रोल या डोमिनेट करना भी आसान बना दिया। अगर मेन आइडिया की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री एक स्ट्रेट लाइन में प्रोग्रेस नहीं हुई। डिफरेंट सोसाइटीज़ ने अलग अलग रास्ते चूज़ किए। टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर ने डेवलपमेंट दिया, लेकिन साथ ही इनइक्वलिटी और डोमिनेशन भी लाए। ह्यूमन पॉपुलेशन का एस्टीमेट देखा जाए तो स्कॉलर्स के हिसाब से जब से होमो सेपियंस आए हैं तब से लेकर अब तक टोटल 70 से 100 बिलियन लोग ज़मीन पर जी चुके हैं। ये सब लोग इसी धरती पर जीकर, काम करके और दुनिया को बदल कर चले गए। ह्यूमंस जो कि मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज़ है, आज ह्यूमन सबसे अनसक्सेसफुल स्पीशीज़ माने जाते हैं, लेकिन हमारी सक्सेस की कीमत दूसरी स्पीशीज़ ने चुकाई है। जैसे जैसे ह्यूमंस पावरफुल हंटर्स बने, उन्होंने मैमोथ्स जैसे कई एनिमल्स को एक्सटिंक्शन तक पहुंचा दिया। सिविलाइजेशन का इफेक्ट, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बढ़ने के साथ जंगल्स और वाइल्ड लाइफ तेज गति से खत्म हो रहे हैं। हमारा कंट्रोल नेचर पर बढ़ता गया, लेकिन इसका नुकसान एनवायरनमेंट को हुआ। ह्यूमंस और नेचर का रिलेशन डिबेट होती है कि क्या ह्यूमंस फॉलन एंजल्स हैं या राइजन एप्स। लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारे खून का 99% हिस्सा चिंपैंजीज जैसा है। हम सभी लिविंग स्पीशीज से जुड़े हुए हैं। हम वेब ऑफ लाइफ का हिस्सा हैं। अगर वार्निंग मैसेज की बात करी जाए तो अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो उसका नुकसान आखिरकार हमें ही होगा। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना ही बेहतर होगा। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये जो समरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब बचे हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं कल इसका वीडियो बना के इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये हमारा 5 लेक्चर में ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा है आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से अब इसके अगले चैप्टर की हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हमारा चैप्टर होगा यूनिट 2 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।